أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم خواتین و حضرات، روزمرہ زندگی کے مسائل اور اسلامی تعلیمات طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کے آسان حل تجویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بہترین چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہمیشہ کی طرح ہمارے سب سے پہلے آپ سے درخواست یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے بیل آئیکن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ میری بہنوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا لاجواب طبی ٹوٹکا لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں کہ جس میں صرف 1 روپے کا پھل ہے اور اس میں 50 سے لے کے 60 بیماریوں تک آزمودہ علاج موجود ہے۔ آج میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آلو بخارا یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک کی نشانیوں اور کائنات میں اس کی قدرت میں غور و فکر بندے کو اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کا وارث بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنی کتاب میں اس کی ترغیب دی ہے۔ اس نے ہمیں آسمان اور زمین اور پہاڑوں کی تخلیق اور دیگر نشانیوں میں غور کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ بندے کو یہ معلوم ہو جائے اس کائنات کا ایک خالق و مدبر ہے اور وہی ساری عبادتوں کا مستحق ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 190، آسمان اور زمینوں کی پیدائش اور ایک رات کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو میری محترم بہنوں، یہ زندگی، یہ نگینیاں آسمان، یہ وسیع و عریض دھرتی، یہ چمکتا سورج، یہ چاندنی میں نہاتا ہوا چاند، یہ فضائے، یہ سب اپنے وجود کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ ستارے، خلا میں تیرنے والی یہ کہکشائیں، ہواؤں کے دوش میں اڑنے پھرنے والے یہ بادل، یہ اونچے اونچے پربت، یہ سب اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے، آج میں آپ کو ایک الوچہ، اس میں اللہ پاک نے 50 بیماریوں کی اللہ پاک نے اس میں شفا رکھی ہے، 50 بیماریوں کی۔ اب وہ بیماریاں کون کون سی ہیں؟ اگر میں آپ کو اس کے فوائد بتانا چاہوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ صرف ایک پھل اور اس میں اللہ پاک نے اتنی بے شمار بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ آلو بخارا، اس کا مزاج سرد تر ہوتا ہے، ٹھنڈا پھل ہوتا ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ آلو بخارا طبیعت کو نرم بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو پیتا ہے تو اس کی طبیعت، کھاتا ہے یا پیتا ہے اس کا شربت، تو اس کی طبیعت ایک دم نرم ہو جاتی ہے۔ پیاس، جو شخص پیاس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے کھانے سے پیاس اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں، پیاس کو ختم کر دیتے ہیں۔ خون کے جوش کو، نمبر 3، خون کے جوش کو کم کرتا ہے۔ اس لیے بلڈ پریشر کے مریض جن کو بلڈ پریشر ہو، انہیں یہ چاہیے کہ وہ اس آلو بخارا کو استعمال کریں، اس سے خون کے جوش کو کم ہو جائے گا۔ نمبر 4، آلو بخارا
मस्कने सिफर और मलयन होता है। इसके इस्तेमाल से सर दर्द ये फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है। अगर कोई सर दर्द में मुब्तला हो जाए तो इसको खाए, 3-4 आलू बुखारा खाए, अल्लाह पाक के हुक्म से उसका सर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। मिथली में आलू बुखारे का इस्तेमाल बेहद मुफीद होता है। नंबर 5। नंबर 6, गर्मियों में सर दर्द होता है, उसके लिए आलू बुखारे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। ज़ख्मों को, अगर कोई शख्स ज़ख्म में मुब्तला हो जाए, नंबर 7 मैं आपको इसका फ़ायदा बताना चाह रहा हूँ। कोई गिर जाए, ज़ख्म में मुब्तला हो जाए और वो ज़ख्म काफ़ी गहरा हो तो उसे ये चाहिए कि मुतवातर 10 दिन तक आलू बुखारे का इस्तेमाल करे, अल्लाह पाक के हुक्म से ज़ख्म ठीक हो जाएंगे। नंबर 8, अगर कोई आलू बुखारे के पत्ते रगड़ कर नाक के नीचे लेप करे तो आंतों के कीड़े खारिज हो जाते हैं। नंबर 9, नज़ले को रोकने के लिए आलू बुखारे के पत्ते का जो शांदा बनाकर गरारे करे, अल्लाह के हुक्म से नज़ला मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। नंबर 10, आलू बुखारे का मुरब्बा फरहत बख्श और कब्ज़ कुशा होता है। अगर कोई शख्स कब्ज़ में मुब्तला हो जाए तो उसे ये चाहिए कि आलू बुखारे का मुरब्बा इस्तेमाल करे, ठीक हो जाएगा। नंबर 11, खुश्क आलू बुखारा रात को भिगोकर सुबह नहार मुंह सिर्फ पानी छान कर पीने से इहतलाम के लिए नहायत मुफीद होता है। इसका 1 चमचा चाय वाला सौंफ का इजाफा कर लिया जाए तो दुगना फ़ायदा होता है। नंबर 12, रात को सोते वक्त अगर आलू बुखारे के 10 दाने खाए जाएं तो सुबह अजावत सही होती है, तबीयत साफ हो जाती है, मुंह की बदबू दूर हो जाती है। नंबर 13, जिस शख्स को खारिश दूर करने के लिए आलू बुखारे का मुसलसल 10 दिन तक इस्तेमाल करे, रोज़ाना 1-2 खाए तो खारिश इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, पुरानी से पुरानी खारिश भी ख़त्म हो जाएगी। खांसी के लिए अगर कोई इसको खुश्क करके, आलू बुखारे को खुश्क करके खांसी के लिए इसको खाए, रोज़ाना 2-3 इसको इस्तेमाल करे और मुसलसल 11 दिन तक करे तो खुश्क खांसी ख़त्म हो जाएगी। मुंह और हलक की खुश्की को दूर कर देता है। अगर कोई शख्स किसी का मुंह खुश्क है और आंतें खुश्क हैं तो उसे ये चाहिए कि आलू बुखारे का मुसलसल इस्तेमाल करे, अल्लाह के हुक्म से मुंह खुश्क होना ख़त्म हो जाएगा और आंतें खुश्क होना ख़त्म हो जाएंगी। आलू बुखारे में विटामिन A, B, P और C वाफर मकदार में मौजूद होते हैं, जिससे दिमागी काम करने में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। पाँव की जलन, अगर कोई किसी शख्स के गर्मी की वजह से पाँव जलते हैं तो पाँव की जलन को ये दूर कर देता है। चिड़चिड़े मिजाज वाले ये बेहतरीन फल है, अगर वो इसको इस्तेमाल करें 11 डेज तक तो अल्लाह के हुक्म से चिड़चिड़ेपन दूर हो जाएगा। जिस शख्स को नींद नहीं आती उसे ये चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल रोज़ाना 2-3 इस्तेमाल करे तो 5-6 दिन में इंशाअल्लाह सही सुकून वाली नींद आएगी। यरकान जैसी मूजी बीमारियों में 1 पाव आलू बुखारा, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, इसका मिला करके थोड़ी सी इसमें फटकड़ी शामिल करे और इसका सौंफ बना दे और इसे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करे। अल्लाह के हुक्म से यरकान 5 दिनों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा, यरकान मेहमान बन के रह जाएगा।
जल्दी बीमारियों में सबसे ज़्यादा मुफीद है। पत्ते की पथरी बनने से रोकने के लिए आलू बुखारे का इस्तेमाल बेहद मुफीद होता है। आलू बुखारे की चटनी बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, जो कि हाजमा ग़ज़ा और लजीज होती है। इसके चटनी बनाने की तरकीब इस तरह है। आलू बुखारा खुश्क आप निस्फ 1 किलो लें, चीनी 1 किलो लें, रस लीमू 1 पाव, किशमिश 1 पाव, छुहारे 1 पाव, पुदीना निस्फ किलो, बड़ी इलायची 5 दाने। आप इसको भिगो करके अच्छी तरह पीस दें और इसमें अदरक, थोड़ी सी अदरक शामिल करें और ये तमाम एशिया मिला करके चटनी तैयार कर दें, जो कि हाजमे के लिए सबसे बेहतरीन अमल है। अगर गुर्दों में तकलीफ हो, पेशाब रुक रुक के आता हो, तो आलू बुखारे का इस्तेमाल अक्सीर का दर्जा रखता है। खून के कैंसर में आलू बुखारे का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। अल्लाह पाक खून का कैंसर इससे ख़त्म फरमा देते हैं जो आलू बुखारे का मुसलसल इस्तेमाल करता है। भूख की कमी, दिमागी खुश्क, आपाड़ा और दर्द में आलू बुखारे के 7 दाने अगर इसको खाए जाएं तो अल्लाह पाक के हुक्म से ये चीज़ दूर हो जाती है। अब अल्लाह पाक ने ये कितनी बड़ी नेमत इसमें रखी है। अब मेरे अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी नेमतें रखी हैं आलू बुखारे में। अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो अल्लाह ने कितने ज़्यादा फ़वाइद रखे हैं। खुश्क आलू बुखारा खुश्क को, उसमें भी अल्लाह पाक ने बहुत फ़ायदे रखे हैं। इसके पत्तों में भी अल्लाह पाक ने बहुत फ़ायदे रखे हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम की सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाते हैं, मोमिनों से मुखातब हो करके अपने अहले ज़मीन में जितने भी इंसान हैं उनसे मुखातब हो करके फरमाते हैं, आसमान और ज़मीन की पैदाइश में रात भर के लिए हर शख्स के लिए निशानियां हैं। यकीनन अक्लमंद इससे निशानियों से फ़ायदा उठाते हैं। तो सामीन, दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात हैं, चाहे वो ज़मीनी हैं, आसमानी हैं, बहरी हों, बरी हों, फ़ज़ाई हों, खलाई हों, ऊंचे ऊंचे महलों में रहती हों या फिर तंग और तारीक आशियानों में रहती हों, घोंसलों में रहती हों, सारी मखलूक़ात की तख्लीक का मकसद सिर्फ़ एक ही है, सिर्फ़ एक ही है कि रब्बे कायनात की इबादत व बंदगी की जाए। और ये सच है, कायनात की जानदार और बेजान तमाम एशिया मखलूक़ात रात दिन रब्बे कायनात की तस्बीह में मगन और मशगूल रहती हैं। आप समझें या ना समझें, इस बात की गवाही इसी ज़ात ने दी है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, सातों ज़मीन और आसमान उसी की हम्द सना के तराने गाते हैं, ज़मीन उसी की तारीफ़ के नग़्मे गनगनाती है। तो अल्लाह पाक ने ये जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये आप और मेरे कितने ज़्यादा अल्लाह पाक ने इसमें फ़वाइद रखे हैं। अल्लाह पाक इसमें कितनी ज़्यादा इंसान के लिए वो फैसिलिटी दी हैं कि जब मेरा बंदा किसी बीमारी में या किसी परेशानी में या किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, तो उसके लिए अल्लाह पाक ने इस ज़मीन के और इस धरती के ऊपर वो चीज़ें दी हैं। इंसान अगर गौर व फिक्र करे तो उसे अल्लाह पाक की हर वक्त सजदे में पड़ा रहे। तो इस वजह से आलू बुखारे के जो फ़ायदे अल्लाह पाक ने रखे हैं, आज मैंने आपको बताए हैं। अल्लाह पाक ने इसमें 60 बीमारियों का इलाज रखा है, 60 बीमारियों का। और आखिर में मैं तमाम बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को सदका जारिया समझ के औरों तक पहुँचाएँ और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।